feel when you chose the relationship? So आपको, if any of you know felt any difficulty, there was so much negativity, like बहुत जन बोलते कि they find a lot of negativity and it's very difficult for them to do it. So if any of you experienced anything of that, or it was smooth, or you could find all the 10 qualities, so you can please share. ठीक है, let's do the running. उसके बाद if there are any sharing we can do it. So everyone, please खड़े हो जाइए for the running. So your right foot in front, please. I'm starting the music. Faster. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Left foot in front, please. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Clap for yourself. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Now let's begin this session with a beautiful prayer. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. Let's begin the session today. First, we'll read in English and then we'll read in Hindi. Day 16, Magic and Miracles in Health. So who would like to read this chapter? Anyone can nominate themselves. Shelly auntie has raised her hand. Yashashvi, I can do so. Yes, Auntie. Right. Day 16, Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature.
Saint Augustine, 354, 430, theologian and Catholic bishop. Yes, one We minute, should, aunty. 1 minute. So health is so important. हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़े that health is so important, yet all of us take our health for granted. So I don't know how many of you remember that movie Khoobsurat. In that, uh, जो old man थे, he had all the money in the world. He was from a royal family, but he was on his wheelchair. मतलब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, and उनको ठीक भी नहीं होना था. So it's not about how much money you have. You might be having a very lavish house, 2, 3 cars, so many clothes in your cupboard. But at the end of the day, if you don't have health, क्या आपका लाइफ ठीक चलेगा? मनी तो रह जाएगा आपके साथ, but will your life actually work without your health? So yeah, it's so important. And thanks to corona, actually I'm truly grateful that हम लोग को ये पीरियड हेल्थ के बारे में कितना समझा दिया. इम्यून सिस्टम नाम की चीज हमारे सबके मुंह में है. दैट कुछ भी हो जाए, भगवान जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इम्यून सिस्टम, हमारी हेल्थ ठीक रहे. कैसे हम पूरे दिन अपने हेल्थ के बारे में अभी बात करते रहते हैं. सो मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्रारी टू नेचर. मतलब इस जगत में बहुत मैजिक्स होते हैं, इस जिस हमारे को नहीं पता है. एंड मैजिक्स होना कोई अनोखी बात नहीं है इस धरती पे. सो wherever small magics happen in our life, because we don't see it. मतलब हम अभी बस दुनिया में आए हैं मैजिक के, तो हम लोग कैसे बोलते हैं अरे वाह ये भी होता है, ये भी होता है. हाँ, मतलब इस धरती में बहुत कुछ होता है, हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ अस हैव दिस लिमिटिंग बिलीफ कि यार 40 के बाद ना पास की नजर आ जाती है, स्पेक्स आ जाता है. एंड कितने लोग बोलते हैं अपने थॉट से ही उन लोग स्पेक्स ले आते हैं. आई हैव सीन इट 2, 3 पीपल, एंड यू वोंट इवन बिलीव कि अपने थॉट से तो स्पेक्स ले आते हैं, बट बाद में जब ठीक हो जाते हैं उनका पावर, दे आर लाइक ओ गॉड ये तो मैजिक हो गया, मतलब पावर कैसे चला गया. बट दे डोंट रियलाइज दैट दैट इज व्हाट दे थिंक कि 40 के बाद पावर आता है. बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. दीज आर जस्ट लिमिटिंग बिलीव्स इन आवर हेड. हम लोग को पता भी नहीं है कि इस नेचर, इस प्रकृति में क्या क्या चीज है. So we need to find it for ourselves and stop making the limiting beliefs which we have about health. मतलब भरपूर चीज है. So let's continue. Please we continue. should feel we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Yes, 1 minute, auntie. So when all of us are born, we are all born with good health. 95% of people are born with good health. And कैसे खुशी फील होती है ना जब हम बच्चे होते हैं, we are full of aliveness and we are full of energy. तो वैसे ही लाइफ में हम लोग को every moment of a life we need to feel energized. We need to feel full of health. आगे आगे लाइफ में जब हम सब बड़े होते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं यार, कॉलेज में क्या करेंगे, एग्जाम्स कैसे देंगे. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रेस विच overpowers us, our health starts deteriorating. So why not all be the children? Because children में कितनी एनर्जी होती है, आप देखते होंगे पूरे दिन वो भाग दौड़ कर सकते हैं बिना कुछ. एंड उनको टेंशन नहीं होता है कि मेरी हेल्थ कैसी है. दे नो कि हाँ यार हेल्थ तो एकदम परफेक्ट है. So just like that, all of us need to think like that. Please continue, auntie. Sorry. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before they were less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website www.thesecret.tv/stories.
Yes, 1 minute. So when was the last time we actually thought about our health? कि हम लोग ने एक्चुअली बोला था यार मेरे में इतनी एनर्जी है एंड आई एम फुल ऑफ हेल्थ. आई मीन वी डोंट इवन नो हम लोग कब हेल्थ के बारे में कितना नेगेटिव बात करते हैं. कोई भी कॉल करता है यार हेल्थ कैसी है, बस यार चल रही है, लाइफ कट रही है. मतलब दिस इज अ पेटेंट डायलॉग. बट व्हेन आवर हेल्थ इज बैड हम लोग कितना कितना बैड, you know how much we start saying. But it's not only about physical health, it's about your emotional health, it's about your psychological health. तो हेल्थ में बहुत बहुत पार्ट्स है which matters. So and if you think there are no miracles in health, how many of you remember that scene from Secret movie where there was this lady who had breast cancer and the cancer was cured in 3 months? मतलब she just gave love and gratitude. आप सोच भी नहीं सकते, she did not even go to the doctor. And she knew, so many people around her were like, no yeah, you won't, matlab, there's very less chances of you surviving. But wo bas scene dekhega, it's so beautiful. I mean, you can't even imagine that what this chapter is going to reveal to you today. And there's this site called secret.tv, so there's this app also. Whenever I feel low about my health, I just go and read the stories there and it's amazing. मतलब क्या क्या miracles हुए लोग के हेल्थ में, आप बिलीव भी नहीं करेंगे. प्लीज कंटिन्यू आंटी. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand nutrition and medical assistance you might have chosen to follow. When there There is some kind of sickness. Yes auntie, continue. We need to go to the next page. Auntie, you didn't read this. When there is some kind of sickness. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings. Shari auntie, you're on mute. Yes auntie, you went on mute. Your health, you replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Yes auntie, 1 minute. So I've seen so many parents कि अगर बच्चे को सिकनेस भी नहीं होता ना, तो हाउ वी स्टार्ट गेटिंग हाइपर्ड कि ओ माय गॉड इसको तो फ्लू हो गया, ओ माय गॉड अब हेडेक हो गया, तो लेट्स गो टू द डॉक्टर. कैसे हम लोग पूरे टाइम वी एक्चुअली make this such a big thing, मतलब कुछ होता भी नहीं है ना, तो all of us just start saying, not only you but even us, all of us just start getting hyper कि यार अभी क्या हो गया, मतलब चलो डॉक्टर के पास चलो, कुछ स्लाइट सी भी चीज हो जाती है. एंड ऑल ऑफ अस गेट सो हाइपर्ड. मतलब अगर उसको नहीं भी आना है ना उस चीज को आपके बॉडी में, तो यू आर इन्वाइटिंग इट by getting more hypered, by doing more tension. So I mean we don't even know हमारे words कितने powerful होते हैं for health, because whatever we are saying we actually attracting it. Please continue auntie. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yes. So how many of us, when we see ourselves in the mirror, we are like, oh shit, yaar, we have got this pimple. Oh my god,
इतना हेयर फॉल हो रहा है, आई हैव बिकम सो फैट, दिस ड्रेस इज नॉट फिटिंग मी. How many of us say this? Just write on the chat box yes or no. I mean, we don't even realize what we are doing. If you don't want that, don't focus on that. Just give gratitude for what you're grateful for in your body, and that will just start multiplying. ये मत सोचो कि क्या गंदा है आपके बॉडी में. तो आगे आगे जाके there's this chapter which will come, mirror work. So if you want, you can do it from today. Just stand in front of the mirror and say, वाह यार क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है मेरी, मतलब मेरे को आज तक पता ही नहीं था. Wow, I love my eyes, it's so beautiful. So whatever you like about yourself, just say that. अगर आपको अपने बॉडी में जो भी, अगर आपको अपना हेयर भी थोड़ा सा पसंद है, वाह यार भगवान ने ना एकदम एकदम दीपिका पादुकोण जैसी बाल दी है. मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जब आप तारीफ करने लग जाएंगे ना, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दीज गुड थिंग्स, व्हाट मैजिक्स विल स्टार्ट हैपनिंग. एक बार करके तो देखो. जस्ट चेंज योर फोकस, चेंज योर शिफ्ट. As soon as you change your focus and shift in life, everything will happen according to you. It's just what we choose, the negative things about our body or the positive things about our body. And every chapter we read this, whoever has gratitude for their health or their relationship or their money will be given more. And he or she who does not have gratitude, जो है भी ना आपके पास बच्चा कुचा, वो भी भगवान ले लेंगे. Because they are like, इसको तो फर्क नहीं पड़ता, she has taken everything for granted, तो ये भी इससे ले लेते हैं. So I mean, this is how the universe works. Please continue, auntie. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you're reading these words, you're continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude help increases the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health And happiness. and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Yes, so today's chapter shows us 3 steps which will take us in the state of happiness. So ये book, ये chapter आज 3 steps design की है. So why? Because this chapter is actually accelerating our gratitude. तो जैसे हम लोग ने पहले बस अपने थोड़े हेल्थ के बारे में बात किया था in the previous chapter, but today you will see that how you need to be grateful for your past health, for your present health, and for your future health. I mean, there is so much of abundance in life. Please continue, auntie. Step 1. Health you have received, past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Yes, so you need to recollect 3 separate moments. जब आप, you were grateful for your health. जब हम बच्चे थे, हम कितने lively थे. So, I have this brother, and you won't even believe what energy he has in himself. मतलब पूरा दिन कूदता रहता है, पूरा दिन इतना energetic रहता है. And whenever I talk to him, he is so energized. So why am I telling you this? Because all of us need to be like that. All of us has so much energy in our body ना, हम लोग बस इसको suppress करके रखे हैं. Because हम लोग बस इसको negative चीज बोलते हैं, यार नहीं है energy, यार नहीं होता मेरे से ये काम. Why? Let's all be the children we were. जैसे childhood में हम नाचते गाते नहीं थे, वैसे ही अब हमारी energy को उस level पर पहुंचना है. Please continue, auntie. Step 2. Health you are continuing to receive, present. Think about the health you're continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart.
Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words, thank you for each one. Yes, so all our five senses are working today. So why not be grateful for all the five senses? Means all of us need to take a moment and actually say thank you for each one of our senses and for everything, for our organs, whatever we are receiving today. So for our present health, we need to be grateful in the step two. Please continue, Auntie. Step 3, health you want to receive, future. You're going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you're going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. यस तो जो भी हमारे को कभी भी बीमारी होती कैसे हम सब मास्टरी कर लेते हैं ना मेडिसिन में मतलब हाँ ये भी मेडिसिन ले लें हम डॉक्टर से भी ज़्यादा जानते हैं सब इंटरनेट पे सर्च करने लग जाते हैं मतलब आप ये सोचिए even if the even if the symptoms are so mild all of us just start searching on the internet as if इतना बड़ा हो गया है तो आप ये सोचिए that just write in the chat box yes or no when you get importance from someone आपको कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है ना you like to talk to that person a lot and you feel so happy about it so just like that अगर हम अपने हेल्थ को अपना जो हेल्थ है जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको इम्पोर्टेंस दे तो वो भी बोलेंगे ना वाह यार मतलब दिस बॉडी लाइक्स मी सो मच चलो इस बॉडी में जाते हैं मजे लेते हैं ऐसे भी पूरे टाइम तो ये अपने हेल्थ के बारे में बात करती रहती कि कितना खराब चल रहा है तो wherever they will get importance they will start going there gradually and why do we want to give it the importance यार मतलब हेल्थ नहीं अच्छी है तो उसके बारे में मत बात करो I'll give you an example of my Rajan sir, my coach, when he had COVID. For 14 days, he did not pick up anyone's call because he's like, मुझे नहीं चाहिए किसी की sympathy. I am perfectly fine. He was just doing his gratitude and affirmations and उनके mind में एक बार भी नहीं आया कि उनको COVID था. And he did whatever he loved. You won't even believe that he did Tony Robbins ka program, which is one of the most rigorous programs. Means 15 hours he had to stand उस टाइम पे जब उनको कोविड था और अगर नॉर्मली हम होते तो नहीं यार कोविड है यार एनर्जी नहीं कैसे टोनी रॉबिन्स कर ले 15 घंटा खड़ा होना पड़ता है बट दैट वाज हिज बिलीफ कि नो आई कैन डू इट my body can do this because we are the ruler of a kingdom हम जो कमांड करते हैं ना हमारी बॉडी बहुत लॉयल सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छे से हमारी बात सुनती है आप एक बार बोल के तो देखिए आई मीन आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग इन पीपल्स लाइफ देयर वाज दिस मैन ही हैड मतलब उसके ऐसा पावर था कि मतलब जा ही नहीं रहा था and the moment he got to know about this gratitude about this magic book how he started being so grateful for his eyesight and he was so negative पहले and अब बिलीव भी नहीं करेंगे 6 महीने में उसकी पावर ऐसे ठीक हो गई मतलब चमत्कारों की तो भंडार है इस दुनिया में पूछ के तो देखिए प्लीज कंटिन्यू आंटी Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. Yes, so we have spoken before also. 1 minute, Auntie. Thank you. That
in the dreams chapter, you remember we said that you need to be thankful for your dream even before you have received it. तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है that be grateful for it as though you have received it, your ideal state. तो आपका जो भी ideal state है, that you know, अगर आप 70 kgs हैं, अगर आपको 60 kgs होना है, so just focus on ideal state. ये मत बोलो यार मैं इतनी मोटी हूँ, मैं तो पतली नहीं हो रही हूँ. कैसे पतले हो गए यार आप? पूरे दिन तो इसके बारे में बात कर रहे हो. So you know my mom. So my mom's dream was she wanted to achieve 52 kgs. That was the ideal state from a particular weight. एंड वो हर जगह चिपका दी, मतलब अपने विजन बोर्ड में चिपका दी, अपने वेइंग स्केल पे तो एवरी डे अपना वेइंग स्केल देखती थी, तो वहां पे उन्होंने 52 kgs लिख दिया. एंड शी इज ऑलरेडी अचीव्ड इट. व्हाई? बिकॉज शी वाज एवरी डे मेरे को बोलती थी यशा देखो ना मैं इतनी पतली हो गई हूँ, मतलब. एंड यू नो शी यूज्ड टू बाय सो मेनी क्लोथ्स जो 52 kgs की वो जब हो जाएगी वो क्या पहनेंगी. सो दीज आर द प्रॉप्स. तो जब हम गेम्स खेलते हैं ना, डोंट टेक इट यू नो कि 52 kgs कैसे होगा यार, मतलब इतना डिफिकल्ट है. अगर मेरी मॉम डाउट करती तो क्या वो अचीव कर पाती? नहीं, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ डाउट्स था. बट शी वाज सो हैप्पी एंड चीयरफुल. नहीं यार होगा ही होगा, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, मतलब एवरी डे शी यूज्ड टू टेक आउट द वेइंग स्केल एंड जस्ट वेइ हरसेल्फ एंड बी सो हैप्पी. So that is what we need to be. We need to visualize ourselves being the weight we want. And for anything in your body which you want, just focus on the ideal state and trust the universe. Please continue, Auntie. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys then that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. Yes, so our body has everything inside us. हमारी को तो बस कमान देना है. And you know, all of us are just overworking our body. तो जैसे हम अपने फोन को ओवरवर्क कर देते हैं, उसमें मतलब जितना बैटरी होता है हम लोग उसको और चार्ज करते जाते हैं, तो कैसे हीट अप हो जाता है ना कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और फोन. सो जस्ट लाइक दैट, एंड वो अच्छे से नहीं चलता है, तो हम अपने बॉडी को इतना ओवरवर्क कर देते हैं. सो यू नो आवर बॉडी जस्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ बिकॉज all of us are just like नहीं यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. At least start being grateful for what you have. मतलब सबके रिवर्स साइकोलॉजी चलते हैं हम लोग के कि नहीं, whatever we have don't be grateful for that. बट जो नहीं है उसके पीछे भागते रहो, तो पूरे जिंदगी भागते ही रहेंगे हम लोग. जो है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा. So whatever you want to restore today, be it your kidney, be it anything in your body which is not working, you can't even believe. When you start doing this ना, मतलब magics होंगे आपके लाइफ में. Please continue, Auntie. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Yes, so live in that moment कि हाँ यार मुझे वो स्टेट मिल गया है, मैं कितनी पतली हो गई हूँ. Whatever you want to achieve, it's possible. So there's this movie, You Can Heal Your Life by Louis Hay. So all of you can watch it today. I mean, it's amazing. If you're facing any challenges in health. So I had watched it right after this chapter and it's on Netflix. So मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस मूवी में क्या बताया है हेल्थ के बारे में. And there's one more book called Heal Your Body by Louis Hay. And you know, in that book, it's written that whatever disease we have in our health, जो भी हमारे health में होता है, it's connected to our mental being. So, you know, if you have a joint pain, that means कहीं ना कहीं आपके relationship में you are stuck and you are not moving. तो ऐसे ऐसे करके ना वो book हमारे को बताता है कि you know whatever problems you have, whatever challenges you are facing in your health, it's because of your mental health. अगर आपके लाइफ में एक चीज अच्छी सी नहीं चलती है ना तो सब इफेक्ट होने लग जाता है. So it's a beautiful book. I mean, it's available online also. You all can read it. So everything is just connected.
हम यू वी डोंट इवन नो, वी थिंक कि नहीं यार हेडेक हो रहा है क्योंकि बॉडी में कुछ हो रहा है. नहीं, आप कुछ सोच रहे हैं बहुत दिन से, उसके वजह से मे बी इट्स प्रोलॉन्ग्ड, एंड दैट इज व्हाई दीज हेडेक्स आर बीइंग कॉज्ड इन अ बॉडी. और हम लोग तो गजब की चीज है यार, भाव भी देने लग जाते हैं इन सब चीज को. नहीं, जस्ट डोंट टॉक अबाउट योर इलनेस, जस्ट टॉक अबाउट व्हाट यू वांट. प्लीज कंटिन्यू आंटी. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Yes, Hypocr- so 1 minute, Auntie. All of us have those natural forces within us. All the medicines are inside us, the pharmacy is inside us. Matlab, we don't even know. You remember I told you about the placebo effect in the health chapter? So just like that, हमारे अंदर मतलब इतना कुछ है ना. Our body generates thousands of cells every day. It's working so smoothly, yet because of our belief, we just don't maintain our health. I mean, I'll give you an example. There's this 104-year-old lady. She's an Indian runner who is running marathon. 104-year-old. Her name is Man Kaur. आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं. So I was reading about her articles, and what she said कि मुझे तब तक भागना है जब तक मेरे बॉडी में जोश है. एंड वो 104-year-old है, उसको अभी भी अवार्ड्स मिल रहे हैं प्रेसिडेंट से for her marathons. And even when she was 101, she was running so much. मतलब उस लेडी में जोश तो देखिए. 104 है, अभी तक गिव अप नहीं किए, बोलती जब तक मेरे बॉडी में जोश है मैं तब तक भागते रहूंगी. एंड हम लोग तो यार 19, 20, 30, 35 है, अपने आप को अभी से बूढ़े मानने लग गए हैं. कितने लोग को मैं देखती हूँ ना, बोलते यार मैं तो अभी बूढ़ी हो गई. आई कैन नॉट साइकिल आफ्टर द एज ऑफ 40. व्हाई कांट यू साइकिल आफ्टर द एज ऑफ 40? दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ. आप कुछ भी कर सकते हैं. द एज इज जस्ट अ नंबर. Be it 80, be it 90, you can still swim, you can still do cycling. Just change your mind, just change your thoughts, and you don't even know what miracles you'll start receiving in the phase of health. Please continue, Auntie. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Yes, so today's assignment tells us that we need to think about those times जब हम for our past health, for our present health, and for our future health, how we are grateful, how we will be grateful. तो future health में you can visualize, you can take one thing and visualize, wow, मतलब ये कितना, if you want thick hair, or if you want to achieve an ideal state, so you can just visualize that. And ये तो task सिर्फ आज के लिए, but you can do this every day till you have achieved that thing. And one more thing, just remember that this book is telling you to do everything and is giving you the guarantee. तो अगर आपको लग रहा है ना कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से आपका बॉडी ठीक हो जाएगा एंड मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, तो डोंट डू दैट. इफ द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू टू टेक मेडिसिन, keep taking that and साथ में gratitude करते रहिए. So why do we tell you to do gratitude? Why is this book telling you to do gratitude? Because you'll start seeing changes faster in your body. So very important, energize your medicine. आप सोच भी नहीं सकते, when you start energizing your medicine, when you start being grateful for your medicine, what magics will start happening in this medicine. बट अगर आप वही मेडिसिन को बोलते रहो मैं तो 2 महीना से ले रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या कुछ होगा? नहीं, क्योंकि आप वो मेडिसिन को यही वाइब्रेशंस दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा. सो फ्रॉम टुडे all of us just need to change our perspective
and focus on the health we want, focus on the ideal weight we want. So thank you, Shelly Auntie, for reading this chapter so beautifully and nicely for all of us. Thank you. Thank you so much. And now we request Sakshi to explain us this Yes, chapter ma'am. beautifully in Hindi. असाइनमेंट पढ़ा देना, तुम इतनी engrossed हो गई कोई I'm बात so नहीं. sorry. I'm so sorry. Auntie, please read the magic practice. Shelly Auntie, can you just unmute yourself and read this? Yes, I don't think so. She's here. I'll read it. Okay, Sakshi. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or your health you want to improve and spend the minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so you need to recollect 3 separate times जब आपके past health में you were grateful for that and you felt on top of the world. Then after that, for your present health, you need to be grateful for the 5 functions of your body that according to you are working perfectly. And then the last one, any state which you want to improve in your body. So just spend 1 minute visualizing about it. So today you can just take one thing. From tomorrow, if you want, you can focus on 2-3 things on your health if you want to improve. So yes, it's amazing. आप करके देखिएगा. When I did this, I felt so good. मतलब past health के बारे में तो कोई अभी सोचती ही नहीं है कि जब हम बच्चे थे तो कैसे हमारा health इतना अच्छे से चलता था. So you'll feel amazing. Thank you, Sakshi, for making me realize about magic practice, and thank you for reading it. Thank you. Thank you, Yashasvi, for beautifully explaining the chapter in English. And thank you, Shelly Auntie, for reading the chapter in English. So, आज हमारा 16 डे है एंड स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार देखने वाले हैं हम सब आज से. And I would request someone to nominate his or herself to read this beautiful chapter in Hindi. I'll do it. Okay. Please start. You're Mansi, right? Yeah. Okay, please start. 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार. चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं. सेंट ऑगस्टिन 354 to 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. I'll continue, no? Yeah, you can continue, but I'm just saying, I think so your voice is not that clear. If you could keep your phone just a bit away from your, like while you're talking, I think. Give me a second, I'm just disconnecting. Now it's gonna be fine. हमें ज्यादातर समय स्वस्थ ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसे ही महसूस होता है. बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी भी नहीं करते. कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं व अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं. आप शरीर Thank you.
तो आप सोचिए कि हम लोग, जैसे यशस्वी ने कहा, इफ यू आर बोर्न हेल्दी, व्हाई नॉट लिव हेल्दी, बी हेल्दी ऑलवेज 24/7। आप मतलब सोचिए कि हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है, हाउ हैप्पी वी फील जब वो बहुत चबी है, रेड चीक्स है, एकदम वेट ठीक है। और हम लोग जब से वो बॉर्न हुआ है तब तक, जब तक वो बड़ा होते हैं, हमेशा हर मॉम डैड हर एक जन क्या चाहते हैं, वो बेबी हेल्दी रहे, वो बेबी हेल्दी रहे, नो डाउट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी हेल्दी रहे, तो आप अपने हेल्थ पे भी फोकस कर सकते हैं एंड अपने आप को भी रोज बोलिए कि आप हेल्दी रहे, हेल्दी रहे, हेल्दी रहे। आई एम नॉट सेइंग कि आप चाहते नहीं है आप हेल्दी रहे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे हम लोग फोकस करते हैं एंड हमारे हेल्दी रहने की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द कंप्लेंट, वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स जहाँ पे हम लोग को थोड़ी चैलेंजेस आ रही है जीवन में, और इस पे हमें फोकस नहीं करना है। तो आज की चैप्टर में बताएगी किस प्रकार हमारे हेल्थ के एरिया में जो भी थोड़े चैलेंजेस है उसे हम तुरंत जादुई ढंग से हटा सकते हैं अपने जीवन से। प्लीज कंटिन्यू। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कम कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv.stories पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ लीजिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति सेकंड, तन, मन, एक मिनट, स्वास्थ्य। एक मिनट। तो आपको लग रहा होगा ना कि मेरा हेल्थ तो ठीक है, मतलब आई एम फाइन ओनली, बट रिमेम्बर वन थिंग, आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? यस आई एम फाइन, यस आई एम ओके। बीइंग ओके इज नॉट बीइंग हेल्दी। आप ये बात को समझिए। जब आप में वो लाइफ हो, वो एनर्जी हो 24/7 एक बच्चे जैसे, जब आप हमेशा एंथुसियास्टिक हो, उत्साह भरा हो आपके शरीर के अंदर, जब आपसे कोई पूछे चलो आज भागने चलोगी एक राउंड, आप अगर बोले हाँ चलो, तब आप हेल्दी है। और अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो थोड़ी दर्द है, अभी इतनी एनर्जी नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर आपको लग रहा है क्या आप हेल्दी है, उससे हमें लेजी फील करे। नो, दैट इज नॉट बीइंग हेल्दी। बीइंग हेल्दी इज व्हेन यू आर एक्चुअली हैप्पी। कोई आपसे पूछे अरे मैं तो एकदम फिट और फाइन हूँ, एंड आपको मेंटली एंड इमोशनली दोनों एंड फिजिकली ये सब सब चीज आपके हेल्थ में आता है। अगर आपका बॉडी फिट है और आपकी मन ठीक नहीं है, आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे, यू आर नॉट हेल्दी। प्लीज रिमेम्बर, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ बोथ स्टैंड एट एन इक्वल पेडिस्टल। आपको ये बात समझनी होगी आज। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है, जैसे यशस्वी ने कहा, दिस वेबसाइट इज जेन्युइनली अमेजिंग, एंड वो ऐप भी सीक्रेट ऐप आप देखिएगा जाके, मतलब आप मतलब हक्के बक्के हो जाएंगे कि ये कैसे होता है कि लोग की लाइफ में क्या क्या जादू आ रहा है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सब इनको जानते हैं, युवराज सिंह। ही गॉट कैंसर, ही वाज नॉट बीइंग एबल टू प्ले फॉर द इंडियन टीम। उनकी मॉम पूरा पूरा गिव अप कर चुकी थी कि मेरा बेटा तो ठीक हो ही नहीं पाएगा, बट लुक एट हिम, वो अपना बैटल लड़े, वो अपना चैलेंज को ओवरकम किए, एंड ही केम टू प्ले फॉर आवर कंट्री ऑल ओवर अगेन। अगर वो वहां पे हार मान जाते, वो बोलते कि नहीं मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगा, कैंसर कहाँ से ठीक होगा, वो आ पाते इंडिया के लिए वापस खेलने। वो जज्बा, वो जुनून इनके अंदर ही उनको यहाँ लाए, वो बिलीफ अपने अंदर कि यस आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, तभी वो आ पाए हैं। तो आप सोचिए कि उनके साथ हो सकता है, और सीक्रेट वेबसाइट में जो जो और लोग हैं उनके साथ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। हम लोग सब सेम है, एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हम लोग को बस उसे ग्रैब करनी है। प्लीज कंटिन्यू। जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है,
तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाते हैं। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य है कि ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। इसके बारे में सोचिए। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले लेता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य या शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके हाँ पास जी, एक मिनट कृतज्ञता एक मिनट एक मिनट। तो आप देखिए, मतलब अगर शरीर में कुछ छोटी सी भी चीज हुई, कोई छोटी सी गांठ हो गई, कुछ भी हो गई, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग की माइंड दूसरे डायरेक्शन में चलने लग जाती है। हम लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं, मतलब हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग के शरीर में कुछ कोई चैलेंज है कि नहीं है, कि हम लोग सच में ठीक है, कुछ ऐसे ही हो गया होगा। मगर हम लोग उसके अंदर घुसते जाते घुसते जाते घुसते जाते एंड अपने असम्पशंस निकालने शुरू कर देते हैं। मैं और आप दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि कभी मुझे कोई एक हुआ या हेडेक हुआ है, कुछ हुआ है तो मैं नहीं कुछ सोच रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल एंड फिनोमिनल बुक, ये मेरी आदत धीरे धीरे करके खत्म हो रही है और मोर लेस हो चुकी है, एंड आई एम श्योर आपकी भी होगी। सो प्लीज रिमेम्बर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर सोचते रहेंगे कि आपको कुछ है, तो वो आपके पास, अगर नहीं भी है ना, तो वो आपके पास आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी। प्लीज ये बात को समझिए। तो आपको नहीं सोचना है कि अगर छोटी सी एक है, अगर बच्चा को थोड़ी सी खांसी है, या इस समय में भी, इस चैलेंजिंग टाइम में भी अगर आपको थोड़ी सी सर्दी हो गई, खांसी होगी, अरे भैया मौसम बदल रही है तो आपको तभी भी तो हो सकती है ना। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो पैंडेमिक चल रही है उसका कोई सिम्टम्स है, ये इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप क्यों शरीर को सोच रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा सोचिए, कुछ नहीं है, थोड़ी सी सर्दी हो गई यार, मौसम बदल रही है, सबको पता है धीरे धीरे मौसम बदल रही है, बस उस कारण। सो यू नो, ट्राई टू लुक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ना। आप चाहते थोड़ी है कि आपको कुछ हो, नहीं तो आप सोच क्यों रहे हो उसके बारे में। दैट इज द सिंपल लॉजिक। एंड जैसे ही कुछ हो, मतलब जो बैड फीलिंग्स हो ना हमारी फीलिंग स्टार्ट में, उसके एंगर, टेंशन, स्ट्रेस, सब धीरे धीरे करके हम लोग आकर्षित करते हैं। नो, दैट वर्सन्स योर हेल्थ टू अनदर लेवल। आप जानते भी नहीं है कि आप अगर छोटी सी कुछ भी हो, उसके लिए अगर जरा सी भी टेंशन लेने लग जाए ना, आपका हेल्थ अगर इतना खराब है ना, वो इतना खराब हो जाएगा, आप रियलाइज भी नहीं करेंगे। सो फ्रॉम टुडे आप टेंशन और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे और अपने assumptions नहीं बनाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। मानसी और ऑन म्यूट। या जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य या शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य की जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम। एक सेकंड रुकिएगा ना।
तो आज से आप अपने आप को मिरर में देखिए। हम लोग ने सेल्फ मिरर एक्सरसाइज की है, हम लोग ने लार की है। जब भी आप नहाने जाए आप तब कर सकते हैं, दिन में जब भी टाइम मिले। यू हैव टू यू कैन स्पेंड 5 minutes एट लीस्ट, लुक एट द मिरर एंड जस्ट से गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको एक पिंपल है, आप ये नहीं बोलेंगे अरे यार फिर पिंपल हो गया, आप ये बोलिए अरे ठीक है यार एक ही तो है, पूरे फेस में तो नहीं आया पिंपल। आप वैसे सोचेंगे, आप वैसे बोलेंगे। एंड सपोज कोई आपको कॉल करे बोले अरे साक्षी मौसम में कुछ चेंज है, तुमको सर्दी नहीं लग रही है, तुमको हेडेक नहीं हो रहा है, मैं उसके उस बात पे नजर नहीं डालूंगी। मैं क्या बोलती हूँ, नहीं हम तो टोटली फाइन, मतलब मैं तो एकदम अच्छे मूड में हूँ, मेरा शरीर तो एकदम ठीक है, कोई माथा दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। आर्यन राज, आप जब ही उससे पूछिए मतलब वो हमेशा बोलेगा मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं तो एकदम फाइन हूँ, मैं क्या हॉट लग रहा हूँ, बिकॉज ही इज सो पॉजिटिव अबाउट हिज हेल्थ। आप सोचिए उसने बताई भी थी कैसे उसकी वेट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। हाउ कैन ही ओवरकम दिस? तो अपने आप को हमेशा समझाता है नो आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम सो हॉट। यही आपको बोलना है, मतलब उससे सीख के ही इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन इन माय लाइफ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एरिया। वो इतना पॉजिटिव रहता है ना अपने हेल्थ के बारे में कि मैं आपको क्या बताऊं। सो यू हैव टू डू द सेम। कोई फोन करे कुछ भी बोले, आप बोलिए नो आई एम परफेक्ट। कुछ अगर कोई चैलेंज आ भी गई है हेल्थ एरिया में, लोग पूछते हैं ना फोन करके और तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, क्या है कुछ नहीं है, शरीर तो एकदम फाइन है। आप जब ऐसे बोलने लगेंगे ना, आपका हेल्थ में तो चेंज आएगा ही, मन भी इतना इतना फैंटास्टिक लगेगा ना आपको कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब हम पढ़ेंगे वो 3 स्टेप्स जिससे हम अपने जीवन में हेल्थ के एरिया में जादू ही जादू देख सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। पहला कदम जो स्वास्थ्य अपने आपने पाया है। अतीत, बचपन, किशोर अवस्था या व्यसक जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। 1 मिनट। तो दूसरा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको आज जो हो चुका है, हम लोग चाप जब हेल्थ का पहले चैप्टर किए थे डे 4 में, उसमें भी हम लोग को आर्यन ने इतनी सुंदर विजुअलाइजेशन कराई थी। तो हमने अपने बचपन के सारे मोमेंट्स को याद की थी, अपने सारे हेल्थ के चीज को याद की थी। तो वैसे ही जो पास्ट में आपको मिल चुका है उसके लिए आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर चुके हैं सिंस डे 4। तो आपको और ग्रेटिट्यूड देना है उसमें। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है आज कि कोई भी 3 चीज, आई एम श्योर आपको 3 से ज्यादा मिल जाएगी। आप कभी ट्रिप पे गए तो आपको एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में फील हुआ, आपका स्पोर्ट्स डे था उस दिन आपको एकदम लगा कि मतलब आज तो शरीर इतना लाइट फील हो रहा है, सिर्फ शरीर में इतना लाइफ है, आई एम सो एनर्जेटिक, खाली ऊर्जा ही भरी है। यू हैव टू थिंक ऑफ 3 such incidents in your life. It can be whenever, जो हो चुकी है, एंड आपको उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। क्योंकि आप जब उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे आप उसको अट्रैक्ट करें और एनर्जी आती जाएगी आती जाएगी। प्लीज कंटिन्यू। दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में सोच में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 1 मिनट। तो आपको सेकंड क्या करना है? प्रेजेंट, वर्तमान को भी धन्यवाद बोलना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको अगर लग रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है आप कैसे किस डेप्थ में थैंक यू बोले, चैप्टर 4 में हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो कितना हम लोग के लिए कितना काम करता है। आप उसको पढ़ के आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपकी किडनी वर्क कर रही है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग, योर लंग्स आर वर्किंग, हैंड्स, योर्स, नोज, एवरीथिंग इज वर्किंग। तो कोई भी 5 चीज के लिए आपको वर्तमान में कोई भी 5 चीज जो आपकी एकदम सही सलामत चल रही है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। सेकंड स्टेप यही है।
प्लीज कंटिन्यू। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप अब बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग को आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर प्रमाणों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग को अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हम इसको ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता की शक्तिशाली तरीकों से हमारी विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके। 1 मिनट। तो जब भी कोई छोटी सी चीज होती है हम लोग खुद तो assumptions बनाते हैं, उसके बाद एक गूगल क्या मिल गया हम लोग को, उसका तो हम लोग गलत एडवांटेज उठाते ही रहते हैं। गूगल पे गए, एक चीज लिखे, बाबा रे पूरा लिस्ट ही आ जाएगा क्या क्या है आपको, और हम लोग बिलीव करने लग जाते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है, पूरा मास्टरी कर लिए। दवाई भी खोज देते कभी कभार तो हम लोग, बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर एक्चुअली यू बिकम द डॉक्टर। आप सोचिए कि ये आपका काम नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो जो बोलेगा आप उसको एक बार सुनिए तो सही। कभी कभार होता है डॉक्टर भी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बोले, डॉक्टर बोले, गूगल बोले, यू आर नॉट सपोज टू फील नेगेटिव अबाउट योर हेल्थ। आपको जो चाहिए आप उस पर फोकस करिए। आपको चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए आपका वेट कम हो, अब ये मत बोलिए कि मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, मैं क्या बोलूं। मतलब जब आप मिरर में देखे आप सिर्फ ये बोले, आपका वेट कम होगा ही नहीं। अगर आपको डायबिटीज है, यू वांट योर रिपोर्ट टू बी अ सर्टेन काइंड, आपको जो चाहिए ये बोलिए कि वाओ मेरा रिपोर्ट वैसा आ रहा है, मैं थोड़ी थोड़ी मिठाई खा पा रही हूँ। यू हैव टू थिंक लाइक दैट, नॉट कि अरे यार चावल नहीं खा सकती, आलू नहीं खा सकती, कोई मीठा नहीं खा सकती, डायबिटीज तो जा ही नहीं रही है। अगर आप वैसा सोचेंगे तो डायबिटीज तो आपको गले लगाते ही रहेगा, इसको बहुत पसंद हूँ मैं, चलो इसके साथ ही रहती हूँ। Who doesn't like importance? You tell me. तो आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। आपको अपने जो प्रॉब्लम चैलेंजेस है उसको इम्पोर्टेंस देने हैं, बल्कि जो आपको चाहिए उसको इम्पोर्टेंस देने हैं। प्लीज कंटिन्यू। आप अपने शरीर को की जैसी आदर्श अवस्था, I've read this part, no, आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्रण करें, और जैसे ही आपके मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको यह सचमुच मिल गई है। एक इसे मिनट तो एक मिनट तो हम लोग ने आपको बताया था ये जो आपको सचमुच सोचना है ना, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, विच इज द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू फुलफिल योर ड्रीम। तो जब भी आपको चाहिए कि आपका रिपोर्ट ऐसा है या आपका हेल्थ ऐसा हो, वेट ऐसा हो, जो भी चाहिए आपको, आप अगर विजुअलाइज करेंगे ना, वो अगर इतना स्पीड में बढ़ रहा है ना, उसका स्पीड त्रिगुना हो जाएगा, बिलीव मी। एंड सपोज आपका ड्रीम है कि आपका आइडल वेट हो 54 kg,
तो आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब ये मेरा वे ऑफ विजुअलाइजिंग है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट विजुअलाइजिंग एवरी डे फॉर 7 minutes इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव अटेन्ड माय आइडल वेट ऑफ 54 kgs, आई कैन वेयर माय फेवरेट हॉल्टनेक टॉप, आई एम ईटिंग आइसक्रीम्स विदाउट एनी वरीज, my stomach has become so flat, wow what a feeling। आप जितना डेप्थ में जाएंगे विजुअलाइजेशन के समय, उतना आप उस चीज को आकर्षित करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, खाली लिखने से और सोचने से नहीं होगा, आपको एक्चुअली आंख बंद करके शांति से सोचना होगा कि वो आपको मिल चुका है, आप कृतज्ञ है, और वो होगी 100% होगी। प्लीज कंटिन्यू। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग और को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिपोक्रेटिस लगभग 460 टू लगभग 370 ईपू, प्राच्य चिकित्सा के जनक, स्वास्थ्य जादू चमत्कार। थैंक यू। तो आप सोचिए, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। इस लाइन में जितनी सच्चाई है ना, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। आवर बॉडी इज अ केमिस्ट इन इटसेल्फ। हम लोग के बॉडी में क्या क्या नहीं है, मतलब आप लोग ने, जिन लोग ने भी सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें वो इंसान जिस प्लेन क्रैश में, जब वो प्लेन क्रैश हो गई थी, जब वो था उस सिचुएशन में, तो डॉक्टर्स क्या बोले उसे देख के कि ये जिंदा बच ही नहीं सकता है, इसको हॉस्पिटल तो ले जाओ, बट ये ज्यादा दिन जिंदा रहेगा ही नहीं, कोई इसका कोई स्कोप ही नहीं है। मगर दैट मैन, ही न्यू कि नहीं, ऑन द 25th December, क्रिसमस के दिन, मैं इस हॉस्पिटल से अपने पाँव पर बाहर निकलूंगा। उसने डिसाइड कर लिया था, उसने ठान लिया था, क्योंकि आप सोचिए ना, जहाँ चाहे वहां रहा है, वो चाहता था कि वो यहाँ से निकले। वो नहीं सोचता था कि मेरे बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, भले ही मैं प्लेन क्रैश में इंजर्ड हुआ हूँ, उससे मतलब नहीं है मुझे, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक हूँ। अगर वो नहीं सोचता तो वो जिंदा रह पाता? डॉक्टर्स तक बोल दिए थे कि वो नहीं जिंदा रह पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसे होता है ये सब चीज। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही हमारे रोग की सच्ची उपचारक है। प्लीज इस बात में बिलीव करिए, ट्राई टू बिलीव इन इट, जेन्युइनली दिस इज द ट्रूथ। आप दवाई लीजिए, नो डाउट लीजिए, बट बिलीव दैट योर बॉडी इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। प्लीज, थैंक यू, एंड मानसी प्लीज कंटिन्यू। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, तो हाँ, आप एजेंट नहीं बताएगा, हम लोग भी ऐसे निकला।
आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हो, तो आप इसे एक दिन के में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नेगेटिव विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो आप जादुई अभ्यास। एक मिनट, एक मिनट। तो आप देखिए कि जिन लोग ने भी पॉलियाना मूवी देखी है, हम लोग ने जब आपको बताया था ग्लैड गेम के बारे में, वो 10 साल की लड़की जो पैरालाइज थी, बेडरिडन थी, वो हमेशा क्या ढूंढती थी, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे कृतज्ञ रहूं। अगर वो एक 10 साल की लड़की ढूंढ सकती है जब वो पैरालाइज्ड है, तो मैं और आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? 110% हम लोग ढूंढ सकते हैं। And please remember one thing, this entire chapter is constantly telling you, आपको जो है उसके लिए कृतज्ञ होना है, जो आपको चाहिए उस पे फोकस करिए। डू नॉट फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उस लड़की को याद करने की कोशिश करिए जो 10 साल की उम्र में अपने पे भरोसा रखती थी कि मैं इस गद्दे से उठूंगी। पैरालिसिस है तो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए, अगर आप वो मूवी नहीं देखे, आप प्लीज देखिएगा। आपका पूरा माइंड, मतलब आपका बिलीफ ही चेंज हो जाएगा अबाउट दिस इंटायर सिस्टम ऑफ गेटिंग टेंशन होना जब हम बीमार पड़ते हैं। मानसी प्लीज कंटिन्यू। 22 दिन, अरे वही मंदिरा का फोटो। अच्छा, हाँ, अच्छा। जादुई अभ्यास। संग में जाते थे ना। साक्षी प्लीज म्यूट। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों के बारे में को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य का आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्नी हाथ में ले और थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो आज आपको कोई भी 3 चीज जो पास्ट में हुआ है, जिसको सोचते जब आप बहुत एनर्जेटिक प्रफुल्लित थे, उसके बारे में आपको सोचना है और कृतज्ञ होना है। आप लिख भी सकते हैं, नो डाउट, पूरा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट में जो 5 चीज है जो एकदम सही चल रही है, आपको उसके लिए धन्य होना है। और अंत में आपको जो चाहिए, जो आपका आइडल ड्रीम है या वेट हो, कोई आपका रिपोर्ट आना चाहिए कैसा, आपको उसके बारे में कृतज्ञ होना है। And you know, I try this always, and it's only because of my coach Ashmin ma'am. मैं जब भी दवाई लेती हूँ, पानी पीती हूँ, I am always saying कि wow, this water is making me feel so hydrated. This medicine has cured my illness. भले ही आप फर्स्ट टाइम लिए ना, आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, वाओ ये मेडिसिन तो मेरा पूरा हेडेक ठीक कर ही चुका है। अगर आपको अगले 15 दिन तक भी वो लेना है, जब आप ले, आप उसकी तरफ ऐसे उसको बोलिए कि मतलब वो ठीक हो चुका है। यू वॉन्ट बिलीव विथ मी, आई वॉन्ट एन, मतलब मेरा ड्रीम है, मेरा एक आइडल वेट है, जो भी है मुझे पता है, मुझे वो रिसीव हो रहा है। मैं लगातार 20 या 25 दिन से टाइप्स रोज जब भी पानी पीती हूँ, मैं इतना मन को याद दिलाती हूँ, आई हैव टू बी थैंकफुल। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अटेन्ड माय आइडल वेट ऑफ 54 kgs. Whenever I drink water, I say this, that the water has helped me to attain my ideal weight of 54 kgs. जब मैं खाती हूँ, मैं उस समय भी ट्राई करती हूँ याद करने का, and you will not believe,
अभी तक फुल्ली आइडल वेट आ रहा है मुझे पता है, बट देयर हैज बीन अ चेंज इन माय वेट. एंड आप सोचिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करना अभी बंद कर चुकी हूँ इतने दिन से. मम्मा मुझे रोज बोलती है just because of the feelings I'm giving to my water, I have seen a change in my weight. I'm going to attain the ideal weight, I know that, but I've seen a change. तो अगर मैं देख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं देख सकते हैं? जीवन का एम क्या है भाई? स्वस्थ रहो, मस्त रहो. तो सिर्फ अच्छा ही सोचिए ना. मेरे पापा हमेशा किसी को बर्थडे भी विश करते हैं ना, तो वो मैसेज में जरूर लिखेंगे जय हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो. आप भी आज से ट्राई करिए, जिसको बर्थडे विश करना है कोई मिले बोलते रहिए और स्वस्थ रहो, मस्त रहो. यार क्या टेंशन है जीवन में? अपने आप को बोलते रहिए. Just feel happy, positive. You will just see chamatkars in your life. That's it. Thank you, Mansi. Thank you so much for reading the chapter in Hindi. I would now Sakshi, request to Arya. share something. Could you please share after a while, like after Aryan? Thank you. I would now request Aryan to please speak. Hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully in both the languages, English and Hindi. And thank you to both the readers, Shelly Auntie and Mansi, for reading the chapter so nicely and patiently. So, today's chapter, as I've always told you on day 4, like on day 4, also, I told that health chapter is the most important chapter for me. Like, I love this chapter. Like, I can keep talking about this chapter. अब जितना बोलोगे पूरा डे निकल जाएगा, बट आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर. आई लव दैट दिस चैप्टर सो मच. सो आई टेल यू वन थिंग जिससे आप कभी सोचोगे नहीं कि आपका बॉडी में प्रॉब्लम है. लाइक वन थिंग भाई, इफ समथिंग लाइक अगर कोई मेरे को इरिटेशन भी करता है, मेरे बॉडी में कुछ इरिटेशन भी होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अगर वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो पेन वर्ड है दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स. मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स क्या होता है? मतलब एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी जो है दैट रिस्पॉन्स टू आवर थॉट्स. तो हम लोग का जहां पे भी बॉडी पेन हो रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्स जो हम लोग का थॉट्स है. जैसे कि आपके यूनिवर्स पे लोग बोलते हैं ना कि आपका साइंस होता है, मतलब द साइंस आर शोइंग कि यू आर गोइंग रॉन्ग. मतलब आपका यूनिवर्स में अगल बगल आप जब कर रहे हो, कुछ गलत काम हो रहा है, तो यू विल गेट साइंस कि यू आर गोइंग रॉन्ग हियर. वैसे ही हम लोग का बॉडी, तो अपने बॉडी को हम लोग सृष्टि मानते हैं, अपने बॉडी को हम लोग यूनिवर्स मानते हैं. तो when our body is going wrong, when our thoughts are going wrong, so our body gives us the sign. तो बॉडी तो doesn't know हिंदी और इंग्लिश, मतलब बॉडी को तो बात करना आता नहीं है. तो बॉडी का लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी इज पेन. तो वो हम लोग को कई कई जगह पेन दे देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ हेडेक, तो हेडेक का रीजन क्या हुआ होगा? मोस्टली आप बहुत ज्यादा गुस्सा अभी होंगे, या स्ट्रेस आउट हो रहे होंगे, या आपको अचानक से कुछ एंजाइटी टाइप्स हो रहा होगा. सो बॉडी इज टेलिंग यू स्टॉप इट, अभी आप बैड फीलिंग जोन में जा रहे हो, दैट्स व्हाई वो पेन आ रहा है आपके पास. लाइक बॉडी इज गिविंग यू साइन, इट इज टेलिंग यू. हम लोग वो साइन को जब नहीं करते, मतलब व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट साइन, जब बॉडी में हम लोग का पेन हो रहा होता है, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द साइन, और हम लोग बस सोचते रहते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. बहुत बार होता है कि पेन बढ़ जाता है, बिकॉज हम लोग और स्ट्रेस ले रहे हैं. पहले तो कोई और चीज के स्ट्रेस की वजह से पेन आया था, अब वो पेन का स्ट्रेस लेके पेन को हम लोग बढ़ा देते हैं. सो व्हेनेवर आपका बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर एंड गेट ट्रीटेड. बट आप सोचिएगा बैठ के, व्हाट हैव यू डन, व्हाट रॉन्ग हैव यू डन कि आपका बॉडी आपको ये पेन दे रहा है. आई हम जब से व्हेनेवर लाइक अब मेरे को जब पेन होता है, आई सिट डाउन फॉर 5 minutes एंड आई गेट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं. लाइक इफ आई एम ओवर थिंकिंग, इफ आई हैवंट डन माय वर्कआउट, इफ आई हैवंट गिवन इनफ टाइम टू माय बॉडी. आपको फील होता होगा आप जब क्या बोलते हैं बहुत टाइम ज्यादा सो जाते हो, आपका बॉडी अजीब वे में रिएक्ट करता है. क्यों? बिकॉज दैट्स अ साइन. आपका बॉडी बोल रहा है आप एक्स्ट्रा रेस्ट ले चुके हो. व्हेन यू वर्क आउट अ लॉट, बॉडी आपको एक अलग साइन देता है, यू आर गिविंग एक्स्ट्रा प्रेशर, लाइक ओवर बर्न हो रहा है अभी आपका बॉडी. सो हम लोग के अंदर जो भी चल रहा है दैट्स द साइन. सो आज हम लोग करेंगे लाइक टुडे, आपको जैसे कि बोला था टू अचीव योर ड्रीम हेल्थ और ड्रीम एनीथिंग, लाइक टू अचीव योर ड्रीम विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेयर एंड आपका विजुअलाइजेशन अलोंग विद द ग्रैटिट्यूड, ये टुगेदर ही होगा. So I want you all to stretch out for like a minute or so, and then we'll sit down in a straight position and close the eyes. हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे अपना ड्रीम हेल्थ के बारे में. और आपके कोई भी क्लोज वन, जैसे कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, इनफैक्ट माय बेस्ट फ्रेंड इज going through some challenges, so even I'll be putting him in my gratitude. Like
अपने मन में बोलूंगा जब प्रेयर के वक्त में. सो इफ यू आर समवन लाइक हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी चैलेंजेस गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और कोई भी आपका नॉर्मल लेग पेन, हैंड पेन या हेडेक होता है, तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कि ताकि आप उसको अगर ठीक करना चाहते हो. एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, आप उसको भी ठीक कर सकते हो. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ. आपको बस विजुअलाइज करना, आपको जिसको भी अभी ठीक जो वट एवर आई बी सेइंग विजुअलाइज कीजिएगा. And please don't open your eyes until I tell you. I'll give you the command to open your eyes. If I don't say for long time, मतलब कि I'm giving you time to visualize it. Like I want you to imagine that बहुत ज़्यादा. So let's stretch for some time, and then we can sit in a comfortable position. And one more thing, आपको जैसे भी comfort, like today's visualization can be little long, तो you all can join your hands or you all can keep your hands like this on your lap, like जो भी आपको comfortable लगता है. क्योंकि हम लोग प्रे भी कर रहे, तो वी शुड इधर अपना मतलब भगवान को हाथ ऊपर करके दिखाना चाहिए या हाथ जोड़ के रखना चाहिए. तो everyone please close your eyes and sit straight and take 3 deep breaths. May the power of my infinite intelligence heal my body. May the power of my infinite intelligence heal my close and dear one's body. Imagine your friends, your family members, आपको जिनका भी body heal करना है. The divine soul is healing me. Sports all around, basketball, cricket, football, hockey. Think how you used to roam around. पूरे स्कूल में आप घूमते रहते थे. You used to feel so alive. आप इतना excited रहते थे. Think of the time in your 20s when you were in college. You used to wake up early in the morning, get ready for the college, rush to the college, बिना कोई थकान आलस के बस कॉलेज पहुंचना था. कैसे एक्साइटेड रहते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलना है, गर्लफ्रेंड्स लोग से मिलना है. Say thank you to your health, for your good health at that time. Thank you, thank you, thank you. Gift of life is keeping me alive. Divine soul is healing my body. Power of my conscious mind is healing my body. Now start feeling your body parts. Thank you, heart. Thank you, ears. Thank you, eyes. Thank you, hands. Thank you, fingers. Thank you, my legs. Thank you, my stomach. Thank you, my kidney. Thank you, my lungs. Thank you, my nose.
Thank you, my tongue. Now think of your dream and perfect health. How do you want to look? What is your dream health? Like it can be a lean body. What is your dream? आपको 21 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, 42 kilometers marathon भागना होगा. What is your dream health? Every day running 10 kilometers. Every day you sitting down for yoga. आप इमेजिन कीजिए आपका जो भी ड्रीम हेल्थ. इमेजिन योर आइडियल वेट. जो भी आपका ड्रीम वेट है, मतलब इमेजिन यूर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन एंड सीइंग आज जो भी आपको वेट चाहिए. Your dream fitness could be going to gym every day. Think of the energy in your body at that time. आपका body में energy क्या होगा उस time when you're doing that. Say thank you, thank you, thank you. बोलिए कितना बढ़िया हेल्थ है हमारा. Thank you for the perfect BP. Thank you for the perfect blood pressure. Miracles are happening in my life. जादू हो रहा है जिंदगी में बस. Thank you for my ideal weight. I love every cell of my body. I am healing. I have respect for my body. I love my body cells. Perfect health is my divine right. Perfect health मेरा हक है. I am child of God. I love life. Water is my favorite drink. It keeps me clean and hydrated. I allow my body to rest. I am safe. Perfect health is my divine right. ये मेरा हक है. My body is in good health. My body has always supported me. Gift of health is keeping me alive. My brain is filled with positive thoughts. अब आप अपना नाम लेके बोलेगा. I accept you, Aryan Raj. I accept you the way you are. Thank you for everything. Everyone appreciates my beauty. I really take good care of my body. Today I am wiser and more mature. I love myself and my body. I love you. I love you. I really, really love you. I love you. I love you. I really, really love you. Now say thank you, thank you, thank you. And whenever you all feel comfortable, open your eyes. I'm giving you all 1 minute to come back to normal state.
So everyone, please open your eyes with the word thank you and say how did you all feel? Like if you all Really, I actually felt really good. Like it was amazing. I actually could visualize, and I felt like there was some vibes in my, like some vibrations in my body, and it was all positive. thank you. Thank you. Thank you. Anyone else, like you all must have done it for the first time in such depth, I hope. So how did you all feel? Like if you all can share in the chat box or if you all can unmute yourself and say. Like whatever you felt positive even for like 2 minutes during the entire visualization. जो आपको अच्छा लगा आप बोल सकते It was a beautiful feeling and nostalgic. हैं. Thank you, you. Pawan. Thank you. So let's do today's Shukrana. And then We'll do dance and then we'll do questions and sharings. So everyone please join your hands and close your eyes. Thank you, God. I woke up early and fresh. Thank you, water, for keeping me clean and hydrated. Thank you for the fresh air that I breathe. Thank you, my parents, for loving me, caring me, supporting me, and always fulfilling my demands. Thank you, my friends, for loving me, checking on me, appreciating me, respecting me, and always entertaining me. Thank you, workers, for always helping me. Thank you, God, for my family's safety, good health, and prosperity. Thank you, thank you, thank you. तो आज का हमारा जो गाना है इट्स मोर ऑफ लविंग योर सेल्फ देन एक्चुअली डांसिंग. तो आज हम वैसा गाना कर रहे. इट्स नॉट दैट एनर्जेटिक बट आई एम श्योर यू गोना फील रियली गुड. तो यू कैन स्वे, यू कैन आल्सो डांस इफ यू वांट टू, बट फील ईच एंड एवरी वर्ड. ये अपने आप से आप गा के मिरर के सामने कर सकते. दिस इज आवर पर्सपेक्टिव. सो लेट्स ऑल डांस. So you have to believe that आप अपने आप से बात कर रहे हैं. When I look into your eyes, I feel love. That is the main motto जिस कारण हम आज ये गाना आपको सुनाए. This is not to just sing with your lover. अपने आप से प्यार करिए पहले, तब तो आप किसी को प्यार दे पाएंगे. तो whenever you feel low, आप ये गाना चला सकते हैं, मिरर के सामने बैठ सकते हैं, just sing this song. Feel that you are loving yourself always. And that's why we say, look in your eye. If you actually want to fall in love with yourself, if you actually want to respect yourself, you have to start looking in the eye. Like Sakshi and Yashasvi know, like I can't turn on my video and do video call. It's not possible because मैं किसी और को नहीं देख पाता if I'm doing a video call. It's very difficult for me to see someone else. Now, any other questions, sharing? Can I add something? Yes. Yeah. So everyone on this call, Aryan is really obsessed with himself, and even my dad, and they both just love themselves, and just like that, all of us need to love ourselves. मतलब हम लोग कोई भी फ्रेंड्स के वीडियो कॉल में होते हैं ना, सब लोग बोलते हैं आर्यन तुम तो बस अपने आप को देखते रहे. हम लोग, and you know it's so funny. We just love that thing about him. Very true. You can ask your questions now. And if you all have any sharing, you all can share also. Aryan, I'd like to share. Yes, Mansi, please. So this chapter is really close to me. At least I have seen the best results in this chapter and the one before with health. I used to have so many seasonal coughs and colds every time. But you know, somehow this year, 2020 में usually लोगों को ज़्यादा problems हुआ है, but मेरा तो even my gastric issues, even my seasonal cough and cold has reduced. Usually I have to have it like for a week. Now even if I get it, it's like for a day or two and it's gone. लगता था ना कि it's gonna headache होने वाले नहीं सोचोगे, इग्नोर करते जाओगे. अगर ग्रेटफुल भी नहीं हो तो भी अगर इग्नोर कर दिए ना उस टाइम को ही, तो वो improve जा रहे हैं. Lovely. Thank you, Mansi, for your sharing. Thank you. And one more thing, next time आपको कहीं भी पेन हुआ ना, आप अपने में सोचेगा कि आप
लास्ट 1 वीक में ऐसा क्या किए कि आपका बॉडी आपको ये साइन दे रहा है? लाइक इफ योर लेग्स आर पेनिंग, थिंक कि आपने पाव के साथ अपना क्या किया कि वो आपको ये साइन दे रहा है कि मतलब व्हाट रॉन्ग हैव यू डन टू योर बॉडी? लाइक कुछ तो किए ही होगा. I have a sharing. Yes, auntie. Auntie, please say your name. I'm Jyoti. Yes. I'm Good Jyoti. morning, I'm Jyoti. Yasha's mommy. Yes, ma'am. So about 2 months back, I had got my blood test done, and my hemoglobin was quite low. So I started myself on iron tablets. So all this while, whenever I had taken iron tablets, my stomach never took it very well. I used to get diarrhea. I used to get stomach ache and all those things with it. But this time, whenever I've taken my tablet, I have always blessed my water, blessed my medicine, and I've taken it. And trust me, it's done wonders and miracles for me. I have taken it so well. It's my body is absorbing it so well because I bless it. I have no diarrhea with it. Absolutely. I feel absolutely normal. In fact, I feel so much more energetic after taking it that I can't tell you. So this is really, it's like, the power of belief and the power of, feelings and love that you give to your water, to your medicine, and to everything around you that has really helped me so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, auntie, so so much for much for. sharing, Jyoti auntie. Thank you for believing in us, auntie. Very Thank you good. so much. Thank you for creating so much magic in our lives. Thank you so much. Okay, so I think no one else has any other questions or sharings. So if you all have any doubts regarding today's assignment or any other assignment from previous days, please feel free to text us at any time. We'll try to respond to you as soon as possible. Hope to see you all tomorrow. Thank you for coming today. Have a magical day. Thank you. Thank you. Thank you.